جی میں اس وقت راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے باہر کھڑی ہوں. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر انصر سے ملاقات کریں گے اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہم فیلڈ میں چلیں گے اور جا کے دیکھیں گے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے خاتمے کے لیے جو مہم چل رہی ہے اس پہ کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے. ہم نے آج جو ہے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے لوکل ہیپیٹائٹس ایلیمینیشن اینڈ پریونشن. یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے. یہ گلوبل ہیلتھ ٹاسک فورس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کی کوریج کرنی ہے. انیشلی ہمارا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ 10,000 کی پاپولیشن پہ ہے، لیکن اس کے بعد ہم سیکنڈ فیز میں 1,00,000 کی پاپولیشن کو ہیپیٹائٹس بی اور سی فری کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں ہم ہر ایک کے گھر پہ جا کے اس کے بچے سے لے کے بڑے تک تمام فیملی ممبرس کی فری ٹیسٹنگ کریں گے، ان کی ویکسینیشن فری کریں گے. ان کے پی سی آر کے ٹیسٹ جو ہے جو عام مارکیٹ میں 12 سے 15,000 روپے کے ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک لیٹسٹ لیب اسٹیبلش کی ہے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں. تو وہاں ہم ان کے پی سی آر ٹیسٹ جو ہیں جتنے بھی ہوں گے وہ ہم فری کریں گے، اور ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہم جو ہے وہ فری دیں گے. اور اس کا پورا ڈیٹا اور ریکارڈ وہ ہمارے پاس ہوگا، اور وہ ہم جس وقت بھی چاہیں اس ڈیٹا کے مطابق اگر کوئی مس بھی ہو گیا ہے اور یا کوئی ریفیوزل ہے تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کور کر کے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم 1,00,000 کی پاپولیشن کو جو ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی فری کریں. اس کے لیے انیشلی ہم نے جو سٹارٹ لیا ہے وہ راول ٹاؤن کی یونین کونسل نمبر 10 سے لیا ہے. اس کے بعد ہم یو سی 11 کو کور کریں گے، یو سی 14، 15، اور اس کے بعد اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم مزید یو سیز کی طرف بھی اپنا اس پروجیکٹ کو بڑھائیں گے. شکریہ. پروجیکٹ کولیشن فار گلوبل ہیپاٹائٹس ایلیمینیشن، ٹاسک فورس فار گلوبل ہیلتھ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر منسٹری کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے. اس میں ہم ایک آبادی کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اور اس آبادی میں سے ہمارا ایم اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم ہیپاٹائٹس کو بالکل ختم کر دیں. اب بالکل ختم کرنے کے لیے 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. پریونشن، جس میں ویکسین آ جاتی ہے، ٹیسٹنگ جو کہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں، اور ٹریٹمنٹ. ہیپاٹائٹس بی کی ٹریٹمنٹ بہت لمبی ہے، اور سی کی ٹریٹمنٹ وہ ہے جو بہت شارٹ لیفٹ ہے، تو اس سے ہم پیشنٹ کو ہیپاٹائٹس فری 3 مہینے کے اندر اندر کر سکتے ہیں. یہ دوائیاں بہت مہنگی ہیں، لیکن ہم اپنے پیشنٹ کو پریونشن، ٹیسٹنگ، ٹریٹمنٹ، ساری سروسز فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے فار بوتھ ہیپاٹائٹس بی اینڈ ہیپاٹائٹس سی. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ عرصے میں یہ جو ہماری آبادی ہے یہ بالکل ہیپاٹائٹس سے پاک ہو جائے، اور جب یہ ایک ماڈل سکسیزفل ہوگا تو ہم اس کو باقی یوسیز میں بھی ایکسپینڈ کریں گے، اور یہ ایک ایسا پائلٹ ہمیں دکھا دے گا کہ ہم کتنی کاسٹ لے کے کتنے لوگوں سے ہیپاٹائٹس ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. ٹیمز نے گھر گھر جانا شروع کر دیا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. آج ہم نے اپنی 25 ٹیمیں، جن میں 50 لوگ ہیں، ان کو فیلڈ میں ڈپلوائے کیا ہے، اور وہ گھر گھر جا کے ابھی سے انہوں نے اسکریننگ، ویکسینیشن اور ٹیسٹنگ کا کام شروع کر دیا. تو اگر ہم جانا چاہیں، آپ کی ٹیم کے ساتھ وزٹ کرنا چاہیں اور فوٹیج لینا چاہیں تو آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ جی بالکل. آپ فیلڈ میں جائیں اور ٹیموں سے ملیں، کیونکہ اصل کام تو وہی لوگ کر رہے ہیں. جی جی، تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو. ہم نے انگیج کی ہے UC 10 کے لیے 10,000 ہم نے پاپولیشن کی ہے، جس کو ہم نے اسکریننگ کرنی ہے. اس کے بعد اگر کوئی سپوز اگر کوئی پازیٹیو آ جاتا ہے تو ہماری فری میڈیسن ہوگی، ان کو پرووائڈ کی جائے گی. اور ہماری جو ہے نا ٹیمز، ہم لوگوں نے ابھی فی الحال اپنی وہ ٹیمز لگائی ہیں جو کہ پہلے بھی ہماری ہیپاٹائٹس میں وہ انگیج ہیں، جو کہ پہلے ہماری کام کر چکی ہیں، جنہوں نے ہماری میزل میں کام کیا ہے، ہمارے پولیو میں کیا. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے بات کرنی ہے، جا کے کس طرح سے اپنے ریفیوزل کور کرنے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو ہماری یہ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، اس کمیونٹی کے لوگ وہ جانتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری وہاں پہ کام اچھا ہو سکے اور ریفیوز نہ کریں لوگ. وہ لوگ ریفیوز کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں لوگ؟ ان کا ریئیکشن کیسا ہے؟ ان لوگوں کو پہلے ہم نے ٹرین کی ہے اچھی طرح سے. 2 دن کی ہماری ٹریننگ تھی، ہم نے ٹریننگ دی ہے، سر نے، میڈم نے، ہم نے مل کے ٹریننگ کی ہے. ہم نے سارا HR بنایا، اس کے مطابق جو ہے نا ان کو اویئرنیس بھی دی ہے کہ کس طرح سے ریفیوزل کو کور کرنا ہے. سب سے پہلے وہ خود کوشش کریں گے کہ ریفیوزل کور ہو ہمارا. اگر ان سے نہیں ہوتا سپوز، تو پھر ہم لوگوں نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے. وہ ہمارے جو سپروائزرز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو بتائیں گے، ان کو انفارم کریں گے. اگر ان سے نہیں ہوتا دین وہ مجھے بتائیں گے، ہماری ہائر اتھارٹیز کو بتائیں گے. اگر ہم میں سے کسی سے نہیں ہوتا تو ہم نے وہاں کے کونسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین، ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے. ان لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہم لوگ اس کو کور کریں گے باقاعدہ. اگر ہمیں سیکورٹی کی بھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم سیکورٹی سے بھی اپنے. تو آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ ہیں تقریباً؟ ہماری 25 ٹیمز ہیں، اور ایک ٹیم کے اندر 2 لوگ ہیں، ایک اسکل پرسن ہے اور ایک اسسٹنٹ ہے، جو کہ اسسٹ کرے گا اس کے مطلب اس کی سپورٹ کے لیے ہے. اور جو اسکل پرسن ہے وہ ہم نے صحیح اسکل، جیسے ہمارے ڈپلوما ہولڈر کہہ لیں، یا ویکسینیٹرز کہہ لیں، ڈسپینسرز کہہ لیں، جن کو ان کام کا پتہ ہے، وہ
सलाम। आप कहाँ से हैं? खैबान से। आपको इसके बारे में क्या पता है? अभी चेक कराना है, देख क्या चेक करवाने हैं? ये अरकान का टेस्ट चेक। ये अरकान का टेस्ट? हाँ जी। चलिए देखते हैं आपके टेस्ट। ये इसकी बनाएंगे सर, टेस्ट कर रहे हैं उसका। ये इधर से जो उनका ब्लड लिया है उसका टेस्ट करने लगे। तो इसका रिज़ल्ट कितनी देर में मैम आ जाएगा? तो विद इन 5 minutes you can diagnose and after that you will give him medicine or something? वैक्सीनेशन। इसके लिए हम करते हैं ब्लड का सैंपल लेते हैं इनका, यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके लिए 1 मिनट वेट करते हैं। वेट करके फिर हम इस पर ड्रॉप्स डालते हैं, डाइल्यूएंट डालते हैं। डाइल्यूएंट डाल के फिर हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर इसका रिज़ल्ट आ जाता है जी। तो अगर इनको डिज़ीज़ यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाता है इनका रिज़ल्ट, तो फिर आप इनको कहाँ भेजेंगे? इनका अगर पॉजिटिव आता है तो हम फ़र्दर किसी बंदे को बुलाएंगे, हम अपने इन्फॉर्म करेंगे और अपने एरिया इंचार्ज को इन्फॉर्म करेंगे, तो वो किसी डिस्पेंसर को भेजेंगे और इनका ब्लड सैंपल लेंगे जो हम PCR के लिए करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे। इनकी एंट्री कर रहे हैं जैसे? हम बाकायदा एंट्री कर रहे हैं, हमारे साथ असिस्टेंट है, ये हमारी एंट्री कर रही हैं। बच्चे जो भी आ रहे हैं ना उनकी एंट्री हम नोट कर रहे हैं। तो ये लोग कैसे आ रहे हैं? आप लोग खुद इनको घरों से लेके आ रहे हैं? किस तरह से इनको इन्फॉर्म कैसे किया है आपने? लोगों को ऐलान वगैरह करवाया है, उसके ऐलान के थ्रू भी इनको नॉलेज हुई है और बाकायदा हमारे बैनर्स लगे हुए हैं और घर घर डोर टीम विज़िट कर रही है, वो इनको बता भी रही है और टेस्ट भी कर रहे हैं। तो आप घरों में भी जा रही हैं टीम्स आपके? हाँ जी, घरों में जा रही हैं। तो यहाँ पे ये लोग खुद ही आ रहे हैं? जी जी, खुद भी आ रहे तो घरों में जो जाते हैं तो आप सारी किट्स वगैरह सब कुछ लेके जाते हैं, वैक्सीन भी लेके जाते हैं साथ? हैं जी, सब कुछ साथ लेके जाते हैं, सारा सामान। पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। तो मैम ये किस तरह से, ये वाली किस चीज़ की है? ये हेपेटाइटिस सी की किट है और ये हेपेटाइटिस बी की किट है। अच्छा, तो इनका B नेगेटिव आया और C पॉजिटिव आया। पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? नहीं इलाज कराया। ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं कराया। पहले कहीं चेक करवाया था आपने किसी हॉस्पिटल में? नहीं, हॉस्पिटल में मैं खून देने गया था, वहाँ पे मुझे बताया था उन्होंने। लेकिन आपको पता था ये पॉजिटिव आया मेरा पहले कभी? हाँ जी। इलाज नहीं आपने करवाया? नहीं करवाया। अच्छा, PCR दम टेस्ट करवाया था कोई? दम डलवाया था, अल्ट्रासाउंड वगैरह? टेस्ट करवाए थे, अच्छा लेकिन ठीक है, तो हम ना हॉली फैमिली हॉस्पिटल जेस्पेटोलॉजी डिपार्टमेंट रेफर करते हैं। तो
جی سر इनका हेपेटाइटिस सी का पॉजिटिव आ गया है तो इसके स्क्रीनिंग का पर्पज़ ही हमारा यही है कि हेपेटाइटिस सी की जो स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं, ताकि सम टाइम होता है पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं आ रहे होते, पॉजिटिव आएगा, अभी हम इनका PCR करवाएंगे, वो उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है उस टेस्ट की, तो वो जब पॉजिटिव आएगा फिर हम इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हमारा आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट है 3 मंथ्स के लिए हम जो है एंटीवायरल ड्रग्स हैं हेपेटाइटिस सी की, वो हम उसको कंटिन्यू करेंगे और साथ हम उसके मुतलका टेस्ट करवाएंगे, लाइक अपना अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे और बाकी ज़रा ब्लड के टेस्ट दोबारा करवा के LFTs देख लेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट कि इफेक्ट तो नहीं किया इसने जो आपका हेपेटाइटिस है इसने आपके लिवर को। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, अगर टाइमली अगर हम इस डायग्नोस कर लेते हैं, ज़ाहिर लग रहा है कि इंशाल्लाह 3 माह ट्रीटमेंट होगा एंड पेशेंट विल बी वेल इंशाल्लाह। जी थैंक यू। बता दें चेक करने के लिए ताकि उसकी रिपोर्ट आ जाए और फिर इनका ट्रीटमेंट शुरू करवा दें इनकी डिटेल्स भी ले लें और बी की वैक्सीन इनको लगा दें अभी आप। फिर फर्दर ये कि इनकी फैमिली है उसको भी फिर हाँ, और इनकी जहाँ भी फैमिली है अभी टीम वहाँ भेजें घर पे, बाकियों का भी टेस्ट करें उनका, ताकि सबको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है जी अब जैसे इनको डायग्नोस हो गया है तो इनके घर में भी ज़ाहिर है पेशेंट्स होंगे इस तरह के, तो उसके हवाले से क्या करेंगे फिर आप? उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उनमें से अगर कोई पॉजिटिव हुआ जी तो उसकी भी सैम्पलिंग होगी और उसको भी फिर जो है ना बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल या जो, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम एक है ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी सी का, उसके अंदर ट्रीटमेंट फ्री है। जी ये चीज़ें इनमें रखिएगा, ठीक है। सैम्पलिंग वगैरह भी और टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री है। जी काफ़ी एक्सपेंसिव होता था पहले ये खर्च, इतना यानी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, बहुत जी बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, कितनी दुनिया मर जाती थी उसकी वजह से। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है, तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो आप भी उसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि लोगों को जो है ना हमारे साथ तावन करना चाहिए। कई लोग होते हैं वो ज़रा उस चीज़ में होते हैं कि पता नहीं क्या है, शक में होते हैं कि, और बाज़ लोग ऐसे भी हैं वो जैसा कबूतर नहीं होता वो आंखें बंद कर लेता है बिल्ली को देख के कि नहीं टेस्ट कराएंगे तो नहीं पता लगेगा। तो ये बात मेरा ख्याल ठीक नहीं है। इस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या करें वो लोग, कितना के कोऑपरेट करें? बिल्कुल कोऑपरेट करें। एक तो टेस्ट भी फ्री है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और अच्छी चीज़ है। अगर चीज़ का पता लग जाता है तो उसके ऊपर फिर आप अगला वर्कअप कर सकते हैं। और ऐसे भी नहीं है कि इलाज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत एडवांस कर चुके हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों की अब काफ़ी सारी जो ना उसके इलाज आ गया है, अस्पतालों में है। ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अपनी सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। जी हम ख़याबान सर सैयद में मौजूद हैं। यहाँ पे हेपेटाइटिस के ख़ात्मे की मुहिम का आगाज़ हो चुका है। आज यहाँ पे टेस्ट शुरू हो गए थे। एक पेशेंट निकला है जिसको हेपेटाइटिस सी है, उसे बेनज़ीर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है। उसके घर में भी जो पेशेंट्स मौजूद हैं उनके भी टेस्ट किए जाएंगे और अगर उनको भी इस तरह की कोई बीमारी है तो उनका भी इलाज किया जाएगा। और मुफ्त टेस्ट की सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया। तीनों हज़रात एक ऐलान समाअत फरमाएँ। आपके इलाका में हुकूमत पंजाब महकमा सेहत की टीमें घर घर मुहिम सेहत की टीमों के साथ ताउन करें और मुफ्त टेस्ट की सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया। आपके इलाका में हुकूमत पंजाब महकमा सेहत की टीमें घर घर मुहिम कर रही हैं। डे स्टार्ट में फ़र्स्ट डे कौन सा करना है विज़िट करते हुए, वो 20 हाउसेस करते हुए वो एक मैप के थ्रू हाउस नंबर 20 पे आके फिर वो एंडिंग करेंगे, जो कि उनके 100 टारगेट है डेली का। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं रखा हमने, टारगेट हमने ऐसा रखा है कि वो तसल्ली से काम करे और हमारा काम बहुत अच्छा सरअंजाम पाए। तो हर गली में यानी जब करते हैं मॉनिटर सबको किया जाता है, उनको एग्जामिन करते हैं, तो उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास। एक दिन में कितना के हो जाएगा, आपका क्या अंदाज़ा है, कितने के घर हो जाएंगे? हमारे जो है ना हाउसेस जो हैं 20 हैं और टारगेट हमारा 100 है पर टीम का, और हमारी 25 टीम्स काम कर रही हैं और 2500 हमारे पर डे के स्क्रीनिंग होगी, जो कि हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम उसका मज़ीद PCR करेंगे, मज़ीद लैब में भेजेंगे। तो अगर किसी घर में कोई पेशेंट इस तरह निकल आता है तो आप बाकी मेंबर्स को भी सबको चेक करेंगे और उनको फौरी तौर पे यानी तिब्बी इमदाद उनको फराहम की जाएंगी, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा? बिल्कुल, उनकी हमने मेडिसिन भी फ्री रखी है। उसके बाद जो पॉजिटिव निकलता है मेडिसिन फ्री होगी, और अगर वो नेगेटिव होता है दैन हम उनकी वैक्सीनेशन करके हम उनका काम हमारे उसका कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट घर पे जाएंगे। ओके थैंक यू मैम। जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि टीमें घर घर जाके विज़िट कर रही हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से अपना काम करते हैं। जी सर आप बताएंगे। मैडम बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो दूसरा मसला ये आ रहा है कि कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, टेस्ट करवा रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे।
तो यही बता रहे हैं मेडिकल, यही कह रहे हैं मेडिकल इशू है, कोई रिफ्यूज़ आ रहा है हाउस और कोई वैक्सीनेट मतलब नहीं करवा रहा, और कोई जो है टेस्ट सिर्फ करवाने, जस्ट ज़्यादातर वैक्सीनेटेड, कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ जिस सिर्फ देखा जैसे कि आपने देखा कि हम टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो कॉपरेट नहीं कर रहे। तो लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कॉपरेट करें, ये आपकी अपनी बेहतरी है। आप जितना ज़्यादा अपने आप को बीमारियों से बचा के रखेंगे, जिस तरह से आपने कोरोना वायरस में सब ने मिलकर एक मुहिम के यानी साथ दिया, सबका साथ दिया, डॉक्टर्स का साथ दिया, वैक्सीनेशन ली, उसी तरह से हेपेटाइटिस के ख़ात्मे के लिए इस मुहिम में हमारा साथ दीजिएगा। हम भी आपके साथ खड़े हैं। आप ज़रूर हेपेटाइटिस बी, सी इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने आप को और अपने घर वालों को इससे महफूज रखें। उनका डाटा अलग से लिखना है हमने, ताकि हमें दोबारा से उन्हें कवर कर सकें। जो लोग रिफ्यूज़ कर रहे हैं उसका डाटा अलग से आप रख रहे हैं, और जो लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं उनका अलग से। वो डाटा भी नहीं दे रहे। नहीं वो साथ में हाउस नंबर 3 है, हाउस नंबर 3 है। डाटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं साथ साथ, अगर डाटा नहीं मिला तो हाउस नंबर वो साथ हाउस लिख नंबर रहे हैं। हम जो है ना यहाँ के काउंसलर वगैरह को, चेयरमैन वाइस चेयरमैन को साथ लगाते हैं, तो फिर वो कवर करवा देते हैं। कितने और मुफ्त वैक्सीन और अद्वियात फराहम की जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि हम लोगों ने बाकायदा हर घर के बाहर एक डोर मार्किंग की है, उसमें सारा लिख दिया है कि कितने इस घर में अफराद थे और कितने हमने टेस्ट किए और कितने बंदों ने उसमें वैक्सीनेशन करवाई है। उससे हमारे पास एक रेशो आ जाएगी, एक हमें समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारे वैक्सीनेट हो चुके हैं और कितने हमारे रिफ्यूज़ल हैं। जो रिफ्यूज़ल होंगे या जो एन ए होंगे वो हम उन्हें सैटरडे को या संडे को हम दोबारा कवर करेंगे। फिर जिस लेवल से वो कवर होते हैं फिर उसी लेवल से हमसे होते हैं हम करेंगे। अगर हमारे काउंसलर से होते हैं या इवन हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन, या उसके बाद एक लास्ट हमारे पास रह जाती है सिक्योरिटी पुलिस की, फिर हम उनसे मदद लेंगे और इंशाल्लाह कवर सारे करेंगे 100%। अच्छा बिल्कुल, ये हमारी टीम्स हमें बताएंगी, फिर हमारे ये एरिया इंचार्जेस हैं ये कवर करने की कोशिश करेंगी। उसके बाद फिर मैं इनकी मैनेजर हूँ, मैंने इनको कवर करने की कोशिश करनी है। हमसे भी ना हुए फिर हम अपने हायर अथॉरिटी से, अपने COs, DHOs और अपने डायरेक्टर साहब, अगर इनसे भी सपोज नहीं होती फिर हम यहाँ के कम्युनिटी के लोगों को लेके आएंगे, जिन्हें काउंसलर कहा जाता है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन कहा जाता है, उनके थ्रू, क्योंकि उनकी ये लोग ज़्यादा बात मानते हैं। अगर उनके थ्रू भी ना हो सका फिर आखिरी हरबा हमारे पास हमारी सिक्योरिटी रह जाती है, पुलिस। फिर अब शुरू हुई है और पिंडी में शुरू हुई है और वो भी रावल टाउन में हुई है शुरू। तो आपको क्या लगता है काफ़ी ज़्यादा केसेस निकलेंगे? मुझे तो लग रहा है कि केसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हेपेटाइटिस C के बहुत ज़्यादा हैं, B के थोड़े कम है, और जो एक आम परसेंटेज आ रही है मेरा ख्याल है पॉपुलेशन का 10% जो है वो इसमें इन्वॉल्व। तो आपको क्या लगता है ज़्यादातर ये गंदा पानी और इंस्ट्रूमेंट और किस वजह से है? कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आपके डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हाँ जी, वो नॉन स्टरलाइज्ड चीज़ें इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं जी, बार्बर शॉप्स पे होता है, ब्यूटी सैलून्स पे होता है जी, जाके। हॉस्पिटल्स हैं हमारे जो ये जहाँ सर्जरी हो रही हो वहाँ ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट, उसकी मेन वजह है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा लोग उसमें निकले। डेटा हमारे पास ये 7 दिन की कैंपेन के बाद सामने आ जाएगा ना कि अभी हमने 10,000 की पॉपुलेशन को कवर किया है, तो वो क्या डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से फिर जब ये डेटा जाएगा ग्लोबल हेल्थ टास्क फोर्स को, इसके ऊपर रिसर्च करके वो एनालिसिस करके फिर एक अपना फीडबैक देंगे कि अब हमें कहाँ तक इसको एक्सटेंड करना है, कितनी यूनियन काउंसिल्स में और लेके जाना है। डेटा पे डिपेंड कर सकता है, हो सकता है पूरा पिंडी स्वीप करना पड़े जी। तो 7 दिन के बाद दोबारा से 7 दिन के बाद जो है हम इसको 1 अगस्त से फिर रेगुलरली 4 UCs को शुरू कर देंगे जी। 10, 11, 14, 15 रावल टाउन जी जी। इन 4 UCs को शुरू करके पहले इनको क्लीन स्वीप करेंगे, उसके बाद जो है फिर और UCs। तो सिर्फ ये पिंडी में मुहिम चल रही है या ये लीव की के पूरे पंजाब में चल रही है? पंजाब में कहीं नहीं है, सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट पिंडी में है। और ये भी सारा क्रेडिट जो है मिनिस्टर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर साहब को जाता है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को ओन किया, जो अपने डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट को लेकर आए, और जिनकी जो है इनिशिएटिव की वजह से ये प्रोजेक्ट रावल टाउन में सबसे पहले शुरू हुआ है। अभी पूरे पंजाब में ये कहीं नहीं है का प्रोजेक्ट, और ये सारा क्रेडिट हर चीज़ डॉक्टर जमाल नासिर साहब जी जी। इंस्पेक्टर शाहिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं हेपेटाइटिस के एक्ट के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं रावलपिंडी में, उस हवाले से हमें ज़रा ब्रीफिंग दें। जी,
میں جو ہیپیٹائٹس ایکٹ کے حوالے سے جو ہے جتنا بھی انفورسمنٹ کا جتنا بھی کام ہے وہ میرے ذمہ ہے، اور میں انشاءاللہ جو ہے اس پہ ہم بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں. ہم جو باربر شاپس ہیں، سیلون جہاں سے یہ سورس ہوتا ہے ہیپیٹائٹس ایکٹ کے پھیلنے کا، اس کو ہم اس کے تدارک کے لیے نوٹس بھی سرو کر رہے ہیں اور چلانس بھی کر رہے ہیں اور فائن بھی کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ہیپیٹائٹس کے حوالے سے مختلف ہاسپٹلس کا، کلینکس کا بھی ہم جو ہے ہائیجین کے حوالے سے وزٹ کرتے ہیں، اور جہاں بھی ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے تو ہم جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس بھی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو قانونی اقدامات وہ بھی کرتے ہیں. اور جو سیلونز وغیرہ ہیں اور ڈینٹل کلینکس ہیں جو چھوٹے چھوٹے جگہ جگہ پہ سڑکوں پہ بھی بنے ہوئے ہیں، تو ان پہ کوئی چالان وغیرہ کیے جاتے ہیں؟ جی ہم بیوٹی سیلونز اور باربرز اور جتنے بھی ڈینٹل کلینکس ہیں ان کا بھی وزٹ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، اور جو ہمارے جو DHA کے جو SOPs ہیں ہائیجین کے حوالے سے اس پہ ہم جو ہے عمل کرواتے ہیں. ہم جو ہے وہ فائن جو متعلقہ کورس کے اندر چلان کر کے بھیجتے ہیں، اس پہ فائن ان کو ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی ڈینٹل یونٹس ہیں اس کے اندر جو آٹو کلیور اس کو انشور کیا جاتا ہے، باربر سلونز کے اندر جو آٹو کلیور کو انشور کیا جاتا ہے، اور اس طرح مختلف چیزیں جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اسٹرلائز کرنے کے لیے ان کو انشور کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری جو ہدایات پر ڈائریکشنز پہ عمل نہیں کرتا تو ہم قانونی کارروائی بھی ان کے خلاف کرتے ہیں. تو قانونی کارروائی میں کیا ہوتا ہے سر؟ ان کو کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے یا چلان یا ان کو فائن وغیرہ بس ہوتا ہے؟ جی قانونی کارروائی میں جو ہے وہ ہم ان کے چلانز کرتے ہیں، سیل کیا جاتا ہے. اگر کوئی پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو ہم متعلقہ تھانے میں ان کی رپورٹ بھی کرتے ہیں. راولپنڈی کی 4 یونین کونسلز میں یہ کام شروع ہو چکا ہے اور مزید ایک ہفتے تک یہ کام اور بڑھا دیا جائے گا، اور راولپنڈی کے مختلف اور علاقوں میں بھی یہ انشاءاللہ یہ مہم شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. یہ سب ڈاکٹر انصر کی کاوشوں کی وجہ سے ہے اور ڈاکٹر ناصر جمال کی اپنی ذاتی کاوشوں کی وجہ سے یہ مہم یہاں تک پہنچی ہے، اور ہیلتھ کی اور باقی بھی سب ٹیمیں جو ہیں ان کی اس مہم میں ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور سب کوشش کر رہی ہیں کہ راولپنڈی سے ہی نہیں پورے پاکستان سے انشاءاللہ ہیپیٹائٹس B اور C کا خاتمہ ہو جائے.